ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਜ਼। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 +2 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਫਸਟ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸੋ ਥਰਡ ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ 1 ਬਾਏ 1 ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ क्या वो ये 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ। ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਮੀਨਸ ਕਲਾ। ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਬਟ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲਡ ਆਰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ। ਦੇਖੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿੱਲ। ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਫੀਚਰ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬਾਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਰਨ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
सो इस करके असीं कहने कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट एंड मैनेजमेंट बोथ हैज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मटीरियल फॉर अक्वायरिंग नॉलेज। हुण जेकर असीं इहदी प्राइमरी नॉलेज की गल करते हाँ तो आर्ट की गल करिए या मैनेजमेंट की गल करिए वो सानू स्कूलों कॉलेजिस दे विच्चों स्टडी मटीरियल तो ही गेन करनी पैंदी है। आर्टिस्ट दे लिए भी यही है तो अगर कोई मैनेजर बनना चाहता है तो देखो उसनू भी जड़ी है सिस्टमैटिक वे नाल स्टैप बाय स्टैप स्टडी करते हुए उस चीज़ की नॉलेज अक्वायर करनी पैंदी है। सो जिहड़ा फर्स्ट फीचर है आर्ट का वो मैनेजमेंट के उपर अपलाई हुंदा है, उहदे विच प्रेजेंट है। हुण सैकेंड फीचर की गल करिए तो कहते परसनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखो परसनलाइज्ड का की मतलब होया कि हर एक बंदे दा उसनू अपलाई करन दा तरीका अलग अलग हुंदा है, परसनलाइज्ड हुंदा है, यूनीवर्सल नहीं हुंदा। हर एक बंदा उस सिखे हुए ज्ञान नू इक्को ही तरीके दे नाल अपलाई नहीं करता, हर एक बंदा उसनू अलग अलग तरीके नाल अपलाई करूगा। सो इत्थे की लिखिया आफ्टर गैटिंग द नॉलेज आर्टिस्ट जिहड़ा है यूज़ करदा अपने टैलेंट नू इन रियल सिचुएशंस। मैनेजर ऑल्सो यूज हिज नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन। जिमें कि आर्टिस्ट जिहड़ा है उस चीज़ नू परसनलाइज अपने इंडिविजुअल तरीके नाल अपनी जानकारी या अपने मैथड दे नाल उसनू यूज़ करदा है। उस तरह एक मैनेजमेंट जिहड़े है मैनेजर्स जिहड़े है वो भी पर्टिकुलर सिचुएशन दे विच उस सीखे हुए ज्ञान तो अपने तरीके नाल डिसीजन जिहड़े है लैंदे आ। ठीक है कि किवें उस सिचुएशन नू असीं हैंडल करना है। सो हर एक दा नज़रिया इत्थे आके अलग हो जाता है कि ज्ञान जो किताबां तो लिया, जो कि स्टडी मटीरियल तो लिया, जो कि असीं स्कूलों कॉलेजिस तो लिया, इंस्टीट्यूट्स तो लिया, उसनूं असीं यूज़ किवें कीता वो साडा परसनलाइज्ड एप्लीकेशन मैथड हो गए। वो हर एक बंदे दा अलग अलग हो जाता है। सो आर्टिस्ट भी अलग अलग करते हैं। सो ये फीचर जिहड़ा है इत्थे तक असीं कहने हैं कि मैनेजमेंट के उपर भी अपलाई हुंदा है। हुण देखो थर्ड की लिखिया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हुण जो मैनेजमेंट है या जो आर्टिस्ट है पहला देखिए कि आर्टिस्ट जिहड़े है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कि आर्ट किवें बनती है, आर्ट दे विच जिहड़ा आर्टिस्ट है वो किवें उस चीज़ नूं होर ज़्यादा निखारदा है, उसनूं मोर एंड मोर प्रैक्टिस च लैके आंदा है और अपने तौर दे उपर होर ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। सो ये तो पहला असीं लिखदे आ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस जिहड़ी है वो एक आदमी नूं एक आर्टिस्ट नूं परफेक्ट कर दिंदी है। आर्टिस्ट नीड टू बी क्रिएटिव एंड डू प्रैक्टिस रेगुलरली। उसनूं क्रिएटिव होने की जरूरत है और वो की करदा है प्रैक्टिस उहदे लई रूटीन वर्क दे विच जिहड़ा है वो करदा रहिंदा है। मैनेजर हैज़ टू डील विद द न्यू सिचुएशंस विद क्रिएटिव थिंकिंग। हुण जिहड़ा मैनेजर है वो भी इस तरह करदा है। आर्टिस्ट ने की कीता अपनी कला नूं निखारन दे लई होर ज़्यादा डेली रूटीन वाइज प्रैक्टिस कीती। जिवें एक सिंगर रियाज करदा अपनी प्रैक्टिस करदा डेली बेसिस ते करदा चाहे प्रोग्राम कोई ना होवे। ठीक है, इस तरह जो आर्टिस्ट है जो पेंटर है वो भी पेंटिंग डेली बेसिस के उपर करते हैं सो दैट उन्हों का हथ जिहड़ा है वो चंगी तरह टिक जाए। इस तरह जो मैनेजर्स ने वो भी लगातार नवीं नवीं सिचुएशनस दे विच उसनूं हैंडल करते हैं और उन्होंने विच डिसीजन लेंदे आ। सो ये तीनों चीज़ां तीनों पॉइंट जिहड़े आ असीं कनकलूजन के तौर पर की लिखते हैं कि तीनों ही फीचर आर्ट दे मैनेजमेंट दे विच पाए जांदे आ, प्रेजेंट ने। इस करके असीं कनकलूजन ते की लिखिया दीज ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है, इस नो डाउट कोई दो राय नहीं है कि मैनेजमेंट दे विच जिन्ने भी मैनेजर्स हुंदे आ वो अपने तरीके दे नाल डिसीजन लैंदे आ, अपने तरीके दे नाल काम करवाउंदे आ। जदों असीं इहदे मीनिंग की गल कीती सी तां असीं उत्थे ही लिख दित्ता सी कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो उत्थे असीं आर्ट की गल की। जिन्ने भी राइटर्स ने वो मैनेजमेंट नूं आर्ट ज़्यादा मनते आ क्योंकि दूजिਆਂ तो असीं काम लेना तो काम किवें लिया जाऊगा वो थोड़ी कला, तुसीं जिवें मर्जी लो, डरा के लो चाहे लालच दे के लो। ठीक है ना, असीं गाने भी ये चीज़ सुनी है कि 4 तरीके नाल बंदा काम करदा है। किहड़े? लालच नाल, शौक नाल, प्यार नाल, डंडे नाल। तुसीं किवें काम लेना
वो तुहाडी अपनी निजी अपनी परसनलाइज्ड आर्ट है कि असी किवें काम तरीके नाल लैणा है। सो इसे करके मैनेजमेंट नूं आर्ट कहा जाता है। नैक्सट अपना पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट नूं साइंस कहा जाऊगा? इस तो पहला असी फिर मीनिंग देखिए कि साइंस कहा किस नूं जांदा। अज तक असी साइंस किहनूं कहने आ? असी फिजिक्स बायो कैमिस्ट्री नूं साइंस नहीं कहते। दैट आर वो साइंस दे सबजैक्ट्स ने अलग अलग। साइंस किस नूं कहा जाता है? तो साइंस भी सेम चीज़ है, लेकिन ये विच थोड़ा जिहा की चीज़ बदलती है। देखो आर्ट दे विच की सी कि असी ज्ञान लिया, मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज असी गेन की। तो साइंस दे विच भी सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करांगे, बट वो उन्होंने यूज़ करन दे साडे मैथड अलग हो गए। इत्थे साडे मैथड भी सेम रहणगे। असी कीता कि साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच अक्वायर थ्रू ऑब्जरवेशनस एंड एक्सपीरियंसिस। देखो हुण ये चीज़ इस बदली कि असी की कीता लगातार ऑब्जरवेशनस कीतियां। एक चीज़ नूं असी जदों यूज़ करते हैं तो असी उहनूं ऑब्जर्व करते हैं। एक नवीं मैडिसन जदों मार्केट दे विच आंदी है तो WHO मीनस वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उहदा एक पैटर्न रखा, एक सिस्टम रखा गया कि पहलां उसनूं किन्ने परसन दे उपर यूज़ किया जाऊगा, फिर उसनूं ऑब्जर्व किया जाऊगा कि वो परसनस दी बॉडी के उपर की असर दिखाती है। ठीक तो हो जाते हैं, मान लो ठीक हो गए, 3 महीने तक उन्होंने वॉच किया जाएगा। फिर वो 3 महीने तो बॉडी पर कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने माड़ा प्रभाव नहीं पाया, फिर वो बढ़ा के 10 20 30 40 बंदियां दी जाऊगी। फिर 3 महीने का फिर वेटिंग पीरियड होगा, फिर 100 200 300 परसन दी जाऊगी, फिर 3 महीने का वेटिंग पीरियड होगा। ठीक है, ये उन्हों का एक सिस्टमैटिक टाइम जिहड़ा है सिस्टम रखा होया कि किवें असी एक चीज़ नूं मार्केट दे विच उतारना है बाय कॉन्टीन्यूअस ऑब्जरवेशनस। हुण इस तरह जो साइंस नूं असी की बोलते हैं कि साइंस जो है वो किवें जन्म लैंदी है जदों असी इस नूं एक्सपीरियंस करते हैं, जदों असी इस दे उपर लगातार ऑब्जरवेशनस करते हैं विच आर वैरीफाएबल हुंदे आ। यही मैं तुहाडे नाल हुण गल कीती कि जिहड़े रिजल्ट्स नूं असी वैरीफाई कर सकते हैं, असी वेट की जदों हरेक परसन के उपर उहदा इक्को ही असर आया तो फिर असी उसनूं वैरीफाई कर लिया। पहले रिजल्ट नाल दूजे रिजल्ट नूं वैरीफाई कर लिया, दूजे नाल तीजे नूं। जदों सानूं हरेक रिजल्ट दा जिहड़ा सिस्टम है वो यूनीक लग्या तद असी उस फॉर्मूले नूं जिहड़ा है अगे असैप्टेंस दित्ती, तद वो फॉर्मूला जिहड़ा अगे जाके मैडिसन के तौर पर साडे काम आया। वेरीफाइबल एंड कैन एस्टैबलिश रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफैक्ट। देखो हुण इत्थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉज एंड इफैक्ट का रिलेशन जो है वो इत्थे एस्टैबलिश हुंदा है, कॉज तो इफैक्ट का। अगर कोई चीज़ असी करते हैं तो कारण की है, उन्होंने करन तो बाद उहदा इफैक्ट की पिया। बुखार होया, बुखार तो बाद बुखार दे नाल की साडे इफैक्ट आए बॉडी के उपर, फिर असी क्रोसिन दित्ती, क्यों दित्ती, उहनूं देण तो बाद बॉडी ते फिर की इफैक्ट आए। मीनस की है कि 2 चीज़ां जो असी यूज़ कर रहे हैं साइंस दे विच वो है कॉज एंड इफैक्ट। उहदे लई जदों असी यूज़ किया तो लगातार ऑब्जरवेशनस कीते, लगातार एक्सपैरीमेंट्स कीते। जदों हरेक एक्सपैरीमेंट का रिजल्ट साडे कोल सेम आऊगा तद असी उसनूं साइंस कह सकते हैं। वी मस्ट एनालाइज द फॉलोइंग फीचर्स। हुण सानूं की करना है, असी साइंस दे फीचर्स नूं एनालाइज करना है कि क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट के उपर अपलाई होंदे आ होणगे कि नहीं, देखते हैं आपां। हाँ जी, फर्स्ट फीचर की है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम है जिवें आर्ट का सी उवें ही है कि इहदे अंदर की है कि सिस्टमैटिक स्टडी मटीरियल हुंदा है विच कैन वी यूज़ फॉर अक्वायरिंग द नॉलेज। असी पहले ही देख हटे कि मैनेजमेंट दे विच भी इस तरह सी कि मैनेजमेंट की स्टडी करनी है तो उहदे प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बने हुए आ, सानू स्टडी मटीरियल मिल जाता है, एक सिस्टम दे विच रह के असी उहदी एजुकेशन जिहड़ी है गेन कर सकते हैं। सो इस तरह साइंस नूं भी कितों ना कितों सिक्ख्या जाता है, मैनेजमेंट नूं भी कितों ना कितों सिक्ख्या जाएगा। सो ये फीचर जिहड़ा है की है प्रेजेंट है मैनेजमेंट दे विच। सैकेंड फीचर की है कॉन्टीन्यूअस ऑब्जरवेशनस, रूल्स एंड प्रिंसीपल ऑफ साइंस। जिहड़े साइंस दे रूल्स होणगे, उस दे जो प्रिंसीपल्स होणगे, उहनूं असी जनरेट करदे हां आफ्टर कॉन्टीन्यूअस ऑब्जरवेशन। जिवें असी मैडिसन की गल कीती सी हुणे ही, तां उवें असी उहनूं कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्व करदे हां, उहदा इफैक्ट की पैंदा बॉडी के उपर। अगर कोई माड़ा इफैक्ट पैंदा तां असी उसनूं जिहड़ा है
ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। CO2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ CO2 ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ CO2 ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ CO2 ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ CO2 ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ CO3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਉਹ ਢੀਠ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚ ਮੇ ਨਾਟ ਸੇਮ ਇਨ ਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ, ਬਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ 2 ਕੈਪਟਨ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਕਮਾਂਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, एनवायरनमेंट चेंज हो गया,
सो इस करके असी हरेक प्रिंसीपल नूं हरेक ऑर्गेनाइजेशन दे विच इक्को ही तरीके नाल यूज़ नहीं कर सकते। क्लीयर? इस करके असी इस फीचर नूं मैनेजमेंट दे विच एप्लीकेबिलिटी नहीं दिंदे, नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। नैक्सट है जी पॉसिबिलिटी ऑफ रैप्लीकेशन। हुण असी पहलां तां देखिए कि रैप्लीकेशन दा मीनिंग की है। रैप्लीकेशन का मतलब है जदों दो ਜਾਂ दो तो ज़्यादा बंदे सेम रूल नूं ਜਾਂ सेम प्रिंसीपल नूं डिफरेंट सिचुएशन दे विच यूज़ करते आ तां ओहदे नतीजे जिहड़े है वो सेम निकलते हैं। क्या ये मैनेजमेंट च पॉसिबिलिटी है? नहीं है। जदों दो परसनस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन च चले गए, उत्थे उन्होंने सेम प्रिंसीपल नाल काम करता तो उन्होंने की लग्या कि नतीजा सेम नहीं निकलिया। देखो एक टीचर अलग अलग स्कूलों के असी अपने स्कूल नूं चंडीगढ़ के किसी हाईफाई स्कूल नाल कंपेयर करके देखिए तो शायद जो मैथड ऑफ स्टडी इत्थे वर्क करता है वो मैथड ऑफ स्टडी उत्थे वर्क ना करे। जो मैथड ऑफ डिसिपलिन मेनटेन करन दा साडे कोल काम करता है हो सकता उत्थे काम ना करे। सानू डंडा चकना पैंदा है बट वो टीचर्स डंडा नहीं चकते। ठीक है ना? इस करके क्योंकि हो सकता उत्थे जिहड़े बच्चे आ वो बहुत ज़्यादा सभ्यक है, वो शहर के बच्चे आ, वो वैल एजुकेटेड फैमिलीज़ तो आए हुए आ। मैं नहीं कह रहा कि असी वैल एजुकेटेड फैमिलीज़ तो नहीं है, बट साडे खून च ढीठपना हुंदा है ना, असी तंग करना हुंदा है। इस करके असी ये कह सकते हैं कि वो चीज़ां वो मैथड यूनीवर्सल लैवल ते एप्लीकेबल नहीं किए जा सकते। सो इनू भी असी की कहने आ कि ये फीचर भी जो है मैनेजमेंट दे विच प्रेजेंट नहीं है। नैक्सट है जी असी कनकलूजन फिर की कढ़ते हैं जदों असी सारे फीचर्स नूं देखिया कि क्या उन्हां दी प्रेजेंस मैनेजमेंट च है, तो असी कनकलूजन की कढ़िया कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ साइंस। क्यों नहीं है? लाइक अ फिजिक्स, कैमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी की गल कर लीए, असी फिजिक्स की गल कर लीए, कैमिस्ट्री की गल कर लीए, इन्हां दी तरह साइंस जिहड़ी है मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इन्हां दे विच कॉन्टीन्यूसली डिवेलपमेंट्स हुंदियां ने, मैनेजमेंट च डिवेलपमेंट्स नहीं हुंदियां। हैनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसीपल दिते सी और हैनरी फ्यूल कदों आया सी, उस तो बाद अज तक दोबारा कोई 15 प्रिंसीपल नहीं आया, किसी होर ने प्रिंसीपल नहीं दिता, मानता ही नहीं मिली इस तो बाद। मतलब कि इन्वायरमेंट इस तरह का है ही नहीं कि जिहदे अंदर एक गल करिए तो हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाए। ऑबजरवेशन के थ्रू असी उन्होंने प्रमाण कर दीए, सर्टिफाई कर दीए कि हाँ जी ये प्रिंसीपल बनने के योग है, तो इस तरह की गल ही नहीं आई उस तो बाद कोई। इट मीनस कि जिहड़ा ह्यूमन बिहेवियर है बहुत रैपिडली चेंज होया। सो असी की कह सकते हैं कि इन्हां वांगू मैनेजमेंट जिहड़ी है साइंस नहीं है, बिकॉज रैकरिंग डिवेलपमेंट्स आर टेकन प्लेस इन इट। जिहड़ी फिजिक्स है, कैमिस्ट्री है या एस्ट्रोनॉमी है, ये अंदर रैपिडली ग्रोथ हुंदी है, इहदे अंदर चेंजिस आंदियां ने, डिवेलपमेंट हुंदी है, बट वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं हुई। इस करके मैनेजमेंट नूं की बोलिया गया, एक इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया। इनएग्जैक्ट जो एग्जैक्टली साइंस नहीं है, लेकिन ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि इसका काम ही सोसाइटी नाल रिलेटेड है, इसका काम ही सोशल, सारा असी पढ़िया सी ना सोशल प्रोसैस है ये, तो ये सोशल है। इसे करके क्योंकि असी परसनस नाल डीलिंग करनी है, असी परसनस तो ही काम कराना, परसनस दे लई काम कराना है, इस करके। सो वी कैन कॉल्ड मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसीपल्स नूं जो सर्टिफिकेशन मिली वो ऑल ओवर वर्ल्ड तक मिली है, बट ठीक है कि उन्होंने एप्लीकेबिलिटी जिहड़ी है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट डिफर करती है, और यूज़ करने वाले मैनेजर टू मैनेजर डिफर करती है। स्टिल इसनूं साइंस भी कहा जाता है, इनएग्जैक्ट साइंस है ये। आर्ट का असीं पहले ही गल की कि आर्ट तो ये है ही है। और अगली गल कि जिहड़े इस दे साइंस और आर्ट के फीचर्स है वो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन दे विच मौजूद है, प्रेजेंट है, और उवें ही वो की करते हैं, वर्क भी करते हैं। इस करके मैनेजमेंट असी कनकलूजन के तौर पर की लिखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, लेकिन आर्ट ज़्यादा है साइंस तो। ठीक है जी। नैक्सट है हुण कि क्या मैनेजमेंट नूं प्रोफैशन कहा जाता है। सो असी पहला प्रोफैशन देखिए कि प्रोफैशन हुंदा की है। +1 दे विच ऑलरेडी असी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोफैशन हुंदा की है।
प्रोफैशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो असी एक सिस्टमैटिकल नॉलेज लैके डिग्री होल्डर बन के ट्रेनिंग लैके असी उस प्रोफैशन को अक्वायर करते हैं। जो असी उस इंस्टीट्यूट तो एक सर्टिफाई मीनस कि एक मैंबरशिप भी अक्वायर करते हैं, तद असी जिहड़ा है प्रोफैशन स्टार्ट कर सकते हैं। असी ये प्रोफैशन बारे पढ़िया सी, हुण असी इहदे फीचर्स जिहड़े आ देखने आ कि क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट के उपर अपलाई हुंदे आ। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज असी ऑलरेडी गल कर चुके 2 बार इसकी कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज गेन करन दी। इहदे अंदर भी स्टडी मटीरियल है जो सानू सिस्टमैटिक तरीके दे नाल फॉर्मल वे दे विच कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स तो मिलता है। सो ये फीचर तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट दे विच। असी पहलां तो ही गल कीती कि यह फीचर मैनेजमेंट दे विच है। उस तो बाद असी अगली गल करते हैं कि प्रोफैशनल एसोसीएशनस हुंदियां ने जदों असी प्रोफैशन नूं स्टार्ट करते हैं। सानू इन्हां कोल जाना पैंदा है, इन्हां तो ही सानू डिग्री लैनी पैंदी है, इन्हां तो ही सानू मैंबरशिप लैनी पैंदी है। टू रेगुलेट एनी प्रोफैशन देयर आर सम प्रोफैशनल एसोसीएशनस विच मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशनस एंटरिंग द प्रोफैशन। ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, IIM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ कि इहदी एंट्री के उपर किस तरह दी रिस्ट्रिक्शनस लगाई जा सकन या किहड़े बंदे आ सकते हैं किहड़े नहीं आ सकते, है ना। इस तरह का नहीं, कौन बंदा मैनेजर बन सकता, कौन बंदा मैनेजर नहीं बन सकता, नहीं। अगर मैं थोड़ा जिहा दिमाग लगावां तो मैं भी मैनेजर बन सकदा, अपनी स्टडी इस तरह की है। अगर कोई BCom होल्डर है तो वह भी अगे जाके मैनेजर बन सकता है। अगर कोई +2 वाला बंदा ही इन्ना ज़्यादा काढ़ी दिमाग वाला है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्सट्राऑर्डनरी वर्क कर रहा है, तो कुड भी कि वो भी मैनेजर बन सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा आर्ट्स करके अगे गया होगा तो वह भी मैनेजर कर सकता है, अगर कोई साइंस पढ़ के अगे गया तो वह भी मैनेजर बन सकता है। क्या एक डॉक्टर बन सकते हो तुसी जब तक असी डिग्री नहीं लेंदे तां नहीं बन सकते, है ना। सो लेकिन इंडिया के विच सारे डॉक्टर बन जाते हैं। अजकल की है कि मैडिकल स्टोर खुले हुए, डॉक्टरों नालों वध भीड़ उत्थे है। हर एक बंदा की करता मैडिकल स्टोर पर जाके फलानी दवाई दें, वो भी दे के घर तोड़ दिंदा, घर जाके चाहे बंदा मर जाए, है ना। कोई फर्क नहीं, साडे लोगों को भी कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने अपनी दुकानों का फर्क नहीं पैंदा। सो इस करके इंडिया सब कुछ चलता। इनू आपां देखते हैं कि इस दे अंदर की है प्रोफैशनल एसोसीएशनस हुंदियां ने, लेकिन मैनेजमेंट दे विच एसोसीएशन तो है लेकिन उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगूलेशनस नहीं बनाए जो एंट्री के उपर लगाए जान। सो ये फीचर भी जिहड़ा है नैगेटिव हो गया, मैनेजमेंट के उपर अपलाई नहीं हो रहा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री असी पहलां गल कीती कि इस तरह के जिहड़े इत्थे इंस्टीट्यूट हैगे आ मैनेजमेंट दे, वो कोई लीगल रूल्स नहीं बनाउंदे जिन्हां दे नाल इन्हां दी एंट्री नूं रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। प्रोफैशनल बॉडीज़ तो हैगियां बट वो की है कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शनस नहीं लगाते, जिस करके इत्थे भी की असी नैगेटिव हो जाने कि ये रूल भी साडे ते अपलाई नहीं हुंदा। नैक्सट है साडे कोल कोड ऑफ कंडक्ट। हुण जदों असी रिस्ट्रिक्शनस नहीं लगा सके तो असी कोड ऑफ कंडक्ट कित्थे लगाया होगा। कोड ऑफ कंडक्ट कहा किस नूं जांदा है, रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं कहा जाता है। हाउ टू डू वर्क, असी ये काम करना किवें आ, असी ये रूल किहड़े रूल्स नूं असी फॉलो करना होगा इस काम दे अंदर आके, प्रोफैशन दे अंदर आके। लाइक एक डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर के उपर किहड़े रूल्स अपलाई हुंदे आ, प्रोफैशनल्स जिन्ने भी आ सारे दे सारे उन्हां ते किहड़े रूल्स अपलाई हुंदे आ, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। एक दी एग्जाम्पल दिना कि प्रोफैशनल्स अपने आप नूं एडवरटाइज नहीं कर सकते। कते ऐड देखी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऐड लगी होवे, वकील की ऐड लगी होवे मेरे को आओ, डॉक्टर की ऐड लगी होवे कि मेरे को आओ दुखों तो छुटकारा पाओ, है ना। ਜਿਹੜੇ डॉक्टरों की ऐड पुलों के उपर लगी होंदी है, पेजां के उपर, तो वो सारे की है अनऑथराइज्ड होंदे आ। हुण सरकार उन्होंने नहीं रोकती, वो सरकार ये कहती है कि अनऑथराइज को तुसी ना जाओ, असी जाने। लेकिन जो डिग्री होल्डर प्रोफैशनल होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वह अपने आप ਨੂੰ एडवरटाइज नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता अपनी। एक छोटा जिहा कोड ऑफ कंडक्ट है। हुण इसे तरह
मैनेजमेंट दे विच इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनया होया। जदों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी तो कोड ऑफ कंडक्ट की होगा। इस करके ये भी साडे कोल की है पॉइंट आके नैगेटिव हो गया। नैक्सट पॉइंट है साडे कोल सर्विस मोटिव। देखो जो असीं प्रोफैशन च जाने तो प्रोफैशन दे विच साडा मोटिव की है, सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक नूं और उहदे बदले असीं फीस लैनी है। नो डाउट कि साडा उत्थे इकनॉमिक फैक्टर तो है, क्योंकि वो इकनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। पैसा तो असीं लोकां तो लेना, बट साडा प्राइम ऑब्जैक्ट की है टू प्रोवाइड सर्विस। लेकिन मैनेजमेंट दे विच साडा प्राइम ऑब्जैक्ट की है, इत्थे साडा प्राइम ऑब्जैक्ट साडा प्रॉफिट अर्न करना ही है, क्योंकि असी ऑर्गेनाइजेशन नाल जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन दा प्राइम ऑब्जैक्ट प्रॉफिट अर्न करना है। इस करके अगर असी इहदी गल करिए तो ये फीचर भी जिहड़ा है मैनेजमेंट के उपर अपलाई नहीं हुंदा, ये भी इत्थे जाके नैगेटिव हो जाता है। सो एज अ होल असी अगर इत्थे कनकलूजन कढ़ीए कि मैनेजमेंट के उपर ये चीज़ों का की कनकलूजन निकलता है, तो असी ये भी कह सकते हैं कि कुछ जिहड़े फीचर्स है वो इहदे ते अपलाई नहीं हुंदे, जिमें कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंट्री है तो सर्विस मोटिव है, ये फीचर्स अपलाई नहीं हुंदे। इस करके मैनेजमेंट नूं प्रोफैशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बट आने वाले दिनों के विच जिमें जिमें मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स एस्टैबलिश हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जान और मैनेजमेंट जिहड़ी है प्रोफैशन बन जाए। लेकिन अज की घड़ी अगर असी गल करिए तो मैनेजमेंट प्रोफैशन नहीं है। नैक्सट है साडा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हुण इहदे नाल इहनूं कंपेयर किया गया कि क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। हुण दोनों चीज़ां अलग अलग ने। अगर असी एक चीज़ की डेफिनेशन दईए कि मैनेजमेंट की है या एडमिनिस्ट्रेशन की है तो औखा है, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स इहदे मीनिंग दे विच ही कन्फ्यूज़ होए और अलग अलग राइटर्स ने इन्हां दे जो मीनिंग है वो अलग अलग लिखे। हुण कोई तो की कह रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो की है डिफरेंट है फ्रॉम मैनेजमेंट, कोई इसनूं मैनेजमेंट तो अलग मन रहा है। हुण अलग क्यों मनूगा, वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा है वो हायर लैवल है किसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच, जिसका काम की होगा ऑब्जैक्टिव्स डिसाइड करना, पॉलिसीज़ नूं बनाना, और मैनेजमेंट जिहड़ी है वो लोअर लैवल का काम है। असी मैनेजर्स रखते हैं अपने बिजनेस दे विच, सो जो मैनेजर्स नूं रखूगा इट मीनस वो मालक होया और वही एडमिनिस्ट्रेटर होया। सो इस करके कुछ ने तो इस पक्ष नूं रखिया कि मैनेजमेंट ने काम करवाना है और एडमिनिस्ट्रेटर ने काम डिसाइड करना है कि तुसीं इस बार करना की है, तुहाडा टारगेट की होगा, ऑब्जैक्ट की है, साडा गोल की है। ठीक है जी, मैनेजमेंट आंसरेबल होएगी एडमिनिस्ट्रेटर नूं, इस करके मैनेजमेंट नूं लोअर पार्ट ते रखा गया। लेकिन कुछ राइटर्स ने की किया, एडमिनिस्ट्रेशन नूं मैनेजमेंट का पार्ट बना दिता। हुण वो की बोलते आ, कहते दोनों इक्को ही चीज़ां, अलग अलग नहीं है। एज इट कंसर्नड विद कैरिंग आउट विद प्रोसीजर बाय विच प्रोग्राम्स आर लेट डाउन, कम्युनिकेट विद अदर्स एंड चैक द प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लैनिंग। हुण वो की कहते दोनों इक्को ही चीज़ां ने। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जिसका काम की है कैरिंग आउट करना, प्रोसीजर्स बनाने कि काम नूं किवें करना है, स्टैप बाय स्टैप की होना चाहिए है, और कम्युनिकेशन नूं एस्टैबलिश करना और अपने वर्कर्स नाल बाहर सोशली असी कम्युनिकेशन एस्टैबलिश करना है, और प्रोग्रेस असी चैक करनी है कि असी प्लैनिंग की सी और साडा काम हो किन्ना रहा। सो कहंदे ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो इत्थे इन्हां ने की कीता, एडमिनिस्ट्रेशन नूं मैनेजमेंट का ही एक पार्ट मन के चलिया। मतलब ये कह लो कि मैनेजमेंट दे विच भी लैवल बनाए और उहदे विच जिहड़े लैवल उपरले लैवल रखे वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नूं दे दिते। फिर उस तो बाद उन्होंने की कहा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सेम। वो कहते इत्थे सेम है, कोई फर्क ही नहीं है दोनों दे विच। मीनस की रखिया कि कुछ ऑथर्स इन्हों यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, एक दूजे की जगह के उपर दोनों वर्ड्स नूं यूज़ करते हैं। किते एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज़ कर लिया जाता, किते मैनेजमेंट वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। हुण इत्थे की कहंदे आ, बोथ आर यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस, दोनों नूं यूज़ किया जाता कि गाइडेंस, लीडरशिप एंड टू कंट्रोल। इन्हों यूज़ किया जाता है कि किवें तुसीं लीडरशिप करनी है, किवें तुसीं गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, किवें तुसीं अपने वर्कर्स दे काम नूं कंट्रोल करना है। उस तो बाद की
to achieve the goal. In general practice, administration use for government sector, management ਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ for business world। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇयर इज़ नो ਸੈਪਰੇਟ ਸਟਾਫ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਥੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਥੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। दूसरा की है हायर अप इन द हायरार्की, मोर टाइम विल स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एंड लैस टाइम इन मैनेजरीयल एक्टिविटीज़। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਜ਼ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੇयर ਆਰ ਟੂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਟ, ਸਾਇੰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? क्या वाकई ये आर्ट है, क्या वाकई ये साइंस है, क्या वाकई ये प्रोफेशन है, या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, या दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। होपफुली थोनों सारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी थोनों है दैन काइंडली मैसेज करके तुसीं मैनूं दस सकते हो। थैंक यू जी।